Hare Krishna. We'll begin the session with prayers. Namo Vishnupadaya Krishna Preshnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra की जय श्री गौर निताय की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल Hare Krishna. So as is usual, before we begin the next chapter, we first have a Bhagavad Gita overview session. So today is the 11th Bhagavad Gita overview sessions. So we have already done 10 overview sessions of Bhagavad Gita. Lot of inputs about Bhagavad Gita I've given in the 10 sessions that I have taken as the overview. जो अवलोकन का हम सेशंस ले रहे हैं उसमें 10 हमने अध्याय पूरा कंप्लीट कर लिया, 10 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिया है और इन 10 एपिसोड्स में मैं आपको भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ जानकारी मैं दे चुका हूं, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज देयर इन भगवत गीता व्हिच वी आर डूइंग इन द रेगुलर सेशंस. टुडे इज द 11th such session and after today's session the next week, next Monday, we will be starting with the overview of chapter 11. तो 11वें अध्याय का अवलोकन करेंगे, फिर मंगलवार को हम 11वें अध्याय का शुभ प्रारंभ करेंगे. So Krishna continues to describe his opulences in the 11th chapter also. In the 11th chapter, he will eventually show the Vishwarupa, the Darshana to Arjuna. So Adi Shankaracharya also has glorified Bhagavad Gita. You might all be getting already this quotes from Adi Shankaracharya, which we have covered. So he gave 7 shlokas which glorified Bhagavad Gita. So what are these? We will just try to learn here. Hare Krishna. So in the first shloka he says, Gita Shastram Idam Punyam Ya Pate Prayata Puman Vishnu Padam Avatnoti Bhaya Shokadi Varjita. So one who with a regulated mind, Ya Pate Prayata Puman, जो मनुष्य कोशिश करता है अपने मन को लगा के भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए, recites with devotion this Bhagavad Gita scripture, Gita Shastram Idam Punyam, which is the bestower of all virtue. ये हर तरीके का सत्व गुण को प्रदान करता है. तो क्या होगा? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयता पुमान. अगर कोई ध्यान से मन पूर्वक इसको प्रेम से गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा तो क्या होगा? विष्णु पदम अवापनोति. So he will attain to a holy abode such as Vaikunta, the residence of Lord Vishnu. अनेक वैकुंठ लोक हैं और एक गोलोक है, तो इन वैकुंठ लोक में वो प्रवेश करेगा. He will enter into Vaikuntha planets, which is and what is the characteristics of this Vaikuntha Loka? It is always free from mundane qualities based on fear and lamentation. Material world में ये दो रोग हमें सताता है, भय और शोक. या तो हम किसी चीज के लिए भयभीत हो रहे हैं या फिर हम किसी चीज के लिए हम शोक मना रहे हैं. ये एक डिफॉल्ट टेंडेंसी है भौतिक जगत में, खास तौर पे कलयुग में ये और भी ज्यादा हो जाता है. तो वैकुंठ लोक प्रवेश करने से क्या होगा? भय शोकादि वर्जिता. तो ये जो भय और शोक है
उससे हम पार हो जाएंगे. सो we will enter into that kind of a life where there is no fear and there is no lamentation. ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा. ब्रह्मभूता कौन है? जो प्रसन्नात्मा है, हमेशा प्रसन्न रहता है. If somebody is always cribbing, if somebody is always complaining, if somebody is always complaining about in a bad way, if somebody is always talking about इतना दुख है मेरे लाइफ में, that means he is not a Krishna conscious person. But a Krishna conscious person, he is always taking even the miseries in his life as the Lord's wish. इससे ज्यादा मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं भगवान का भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूं, तो भगवान ने उसको एडजस्ट कर दिया है. मुझे कम से कम जो मिलना है वो दे दिया है. और जब भी हमें कुछ मिलता है तो भगवत भक्त क्या सोचता है? हाउ विल अ डिवोटी थिंक? ही थिंक्स मुझे इतना भी नहीं मिलना था, इससे बहुत कम मिलना था, लेकिन मेरे प्रभु कृष्णा कितने दयालु हैं. उन्होंने मेरे लिए मेरे काबिलियत से भी ज्यादा, मेरे more than what I deserve, Krishna has given me. So this is how a devotee thinks when he gets something very nice in his life. So he will say, I didn't deserve this, but the Lord is giving me more than what I deserve. And when he gets some reversal in his life, he will say, I have to get more than this, but the Lord is so merciful that he has given me a token punishment. तो ऐसे भय और शोक से ऊपर उठ जाएंगे जब हम भगवत गीता का अध्ययन करके भगवत धाम पहुंच जाएंगे. केवल हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से और भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करने से, भक्ति से हम गुरु प्रवेश कर सकते हैं. फिर शंकराचार्य ने कहा, गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च. क्या बोल रहे हैं शंकराचार्य जी यहाँ पे? If one reads Bhagavad Gita very sincerely, we are doing the 156th episode. So even in one of these sessions, if you have done properly, so if one reads Bhagavad Gita very sincerely, Gita Dhyayana Shilasya, Shila means with good attention, quality, with good purpose, with all seriousness, then by the grace of the Lord, आपने अध्ययन कर लिया, लेकिन फिर भी आपको आशीर्वाद के रूप से भगवान जब देंगे तभी आपको उसका अच्छे फल मिलेंगे. And by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds, papani, will not act upon him. पूर्व जन्म कृतानि च, जो अनेक अनेक जन्म का पाप वो कर चुका है, इस जन्म में भी वो कर चुका है. पापानी, ऐसे पाप, these sins नहीं वसंती, it will not act upon him. But we cannot use this as now. अच्छा, मुझे टेक्निक पता चल गया, जितने चाहे पाप कर लेंगे, फिर भगवत गीता पढ़ लेंगे. तो ये क्रूकेड नेचर अगर हम लेके अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, what did we learn in the 10th chapter? I am the gambling among the cheaters. तो जो धोखेबाज लोग हैं, उनको कैसे धोखा देना है कृष्ण भगवान को पता है. वो छलिया है. हमें वो छलिया किस लिए है? वो छलिया जैसे लोगों के लिए वो छलिया है. एक प्रेम करने वाले भक्त को वो प्रेमी है. तो कृष्णा इज टेलिंग, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम मेरे पास प्रेम से आओगे, मैं प्रेम से बर्ताव करूंगा. तुम स्नेह चाहोगे, मैं स्नेह दे दूंगा. तुम मुझे वात्सल्य भाव में आओगे, तुम मेरे पास, मैं आपको पुत्र बन जाऊंगा. आप मुझे मालिक बना के आएंगे तो मैं आपको मालिक के रूप में मिलूंगा. आपको दासत्व मैं प्रदान करूंगा. और अगर आप मुझे, आपको बस देख के ग्लोरीफाई करना है, शांत स्वभाव में आपको मेरे संपर्क में रहना है, वो भी आपको मैं प्रदान करूंगा. एंड आप चलिया बन के आएंगे तो मैं भी चलिया बनूंगा. आप राधा बन के आएंगे, हम लोग राधा बन के नहीं आएंगे. राधा के लिए वो संपूर्ण कृष्ण अपने आप को निछावर कर देता है. सो देन शंकराचार्य goes further and says, मलिने मोचनम पुंसाम
जलस्नानं दिने दिने, सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। वन मे क्लींस हिमसेल्फ डेली बाय टेकिंग बाथ इन वाटर, मलिने मोचनम पुंसा, जल स्नानम दिने दिने। हम लोग रोज सुबह जाके नहाते हैं, तो जो मलिन है देह का, उसका हम नाश कर देते हैं। दिन दिन हर रोज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया, एक महीने के बाद हम करेंगे। नो, डेली बात करने से डेली जो आपके शरीर पे ऊपर मलिन लग गया है वो धुल जाएगा। बट इफ वन टेक्स बाथ इवन वंस इन सेक्रेड Ganges वाटर ऑफ भगवद गीता, सकृत, एक बार, गीता अमृत स्नानम, केवल गीता स्नानम नहीं है यहाँ पे, गीता अमृत स्नान। और वैसे ऐसे पानी है, तो ये अमृत वाला पानी है, तो क्या होगा? संसार मलनाशनम, फॉर इन द डर्ट ऑफ मटेरियल लाइफ इज ऑल टुगेदर वैंक्विश्ड। एक बार, केवल एक बार भगवत गीता का अध्ययन करने से। So you see, एक बार नहाने से आप ये नहीं बोल सकते अब साल भर नहीं नहाऊंगा, फिर आपके पास कोई नहीं आने वाला, आप खुद झेल नहीं पाएंगे जो दुर्गंध आएगा। दैट इज द नेचर ऑफ अवर मटेरियल बॉडी। लेकिन गीता अमृत में एक बार भी हम डुबकी लगाएंगे, गीता अध्ययन करेंगे, तो क्या होगा? संसार मल नाशम। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ भगवत गीता। फिर शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य बोलते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य किम मन्ये शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रुता। तो बिकॉज भगवद गीता स्पोकन में सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड एंड गीता को गीता का प्रवचन कौन दे रहे हैं? युद्ध भूमि में अर्जुन को स्वयं भगवान दे रहे हैं। तो अगर बिकॉज क्योंकि ये भगवद गीता स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रुता, स्वयं पद्मनाभ, उनके मुख पद्म से ये आ रहा है बाहर, तो वन नीड नॉट रीड एनी अदर वैदिक लिटरेचर। कि अन्य शास्त्र विस्तार है, विस्तार में कोई और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। वन नीड ओनली अटेंटिवली एंड रेगुलरली हियर एंड रीड भगवद गीता। गीता सुगीता, सुगीता, इन अ नाइस वे वी हियर। गीता ऑल्सो मीन्स टू hear or to chant. Gita Sugita Kartavya, as matter of duty, regularly, attentively hears, and no other literature is required. कि मानिए शास्त्र विस्तार है, 4 लाख श्लोक है वेदों में, नहीं चाहिए, 700 श्लोक में हो जाएगा। In the present age, and one need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all Vedic literature. वैसे भी वेद ग्रंथ का 4 लाख श्लोक पढ़ने का योग्यता तो एटलीस्ट मुझ में नहीं है, आप में से 1-2 लोगों के पास होगा, बट बहु अगर हम इफ यू टेक जनरली, तो बहुत लोगों को ये नहीं हो पाएगा। बट दिस इज नॉट नेसेसरी। लेकिन आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं ये तो अननेसेसरी है, नहीं चाहिए। वेद शास्त्र का ज्ञान 4 लाख श्लोक पढ़ने के लिए 100 साल का अवधि कहाँ होगा? काफी नहीं होगा। दिस वन बुक भगवद गीता विल सफाइस बिकॉज इट इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स। वो सारे वेदों का सार है, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. So, yes, Padmanabhasya Mukha Padma Vinishrita. So, that is Hare Krishna. Hari Bol, Hari Bol. Keep your this one off, please. Hare Krishna. Somebody's mic is on. Please keep it off. Hare Krishna. Okay. Further, we can continue. भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद् विनिश्रितम् गीता गीत्वा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Please keep your microphones on mute. Do not keep the microphones unmuted. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिश्रितं गीत गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. So further, everybody is trying for dharma, artha, kama, moksha. तो धर्म का सहयोगी है, अर्थ के लिए हमारे अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है भगवत गीता. धर्म अर्थ काम, काम का भी पूर्ण हम कर सकते हैं अच्छे रीति विधान से जो भगवत गीता में दिया गया है. बिकॉज कृष्ण हिमसेल्फ इज टेलिंग धर्म अविरुद्ध कामोस्मि. काम बुरा नहीं है, लेकिन काम अगर विकृत हो गया वो बुरा है, वरना काम तो भगवान का स्वरूप है. So to that extent Krishna is telling, Krishna himself is telling in Bhagavad Gita, युक्ताहार विहारस्य. तो युक्त विहार मतलब entertainment is required, enjoyment everybody requires. Krishna is not against it, Shastra is not against it, Guru is not against it. What they are against it is misuse of it, perverted use of it. So Sarvopaniषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना. Did I finish the fifth one? Okay, I didn't finish this. But drinking the Ganges water of Gita, Gita Gangodakam Pitva. तो गीता का गंगा जो उसको पीने से द डिवाइन क्विंटेसेंस ऑफ महाभारता. तो भारत अमृता. तो महाभारत में गीता को वेद व्यास ने जोड़ दिया है. Emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, विष्णु वक्त्राद् विनिश्रितम. तो विष्णु के मुख से, श्री मुख से आ रहा है. One will never take rebirth in the material world again. पुनर्जन्म न विद्यते. भक्ति का क्या ध्याय, मतलब हम क्या करने चाहते हैं भक्ति से? एक तो भगवान की सेवा और भगवत धाम वापस जाना और वापस इस भौतिक जगत में न आना. पुनर्जन्म न विद्यते भगवत गीता का अध्ययन से हो जाएगा. हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से हमें मिल जाएगा. इन अदर वर्ड्स, by devotionally reciting Gita, the cycle of birth and death is terminated. तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से हम पार हो जाएंगे. We'll go out of the material whirlpool. So then Shankaracharya ji is telling, सर्वोपनिषदो गावो दोग्ध गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत. सर्व उपनिषदो गावो. तो गीता भी एक उपनिषद है, गीतोपनिषद. इट इज काउंटेड अमंग उपनिषद्स. इट्स आल्सो श्रुति, इट इज आल्सो स्मृति. श्रुति बिकॉज इट इज knowledge that is got by hearing. It's also smriti because we are getting it by purports of Srila Prabhupada. So all the Upanishads are like cow, but especially Gita is like the best of the cows, Surabhi Gai. And the milker of the cow is Sri Krishna. गोपाल कौन है? दोग्धा गोपाल नंदना. ये दूध निकालने वाला कौन है? इस गीता गाय से कृष्ण भगवान गोपाल. गोपाल नंदना, गोपाल नंदना, because even Nanda Maharaj is Gopal only, Gopala Nandana. So Gopal is also Krishna. Arjuna is the calf. ये दूध कौन पीने जा रहा है? तो ये हमारे कुरुक्षेत्र रणभूमि में पार्थो वत्सा. तो ये पार्थ के लिए निकाला जा रहा है. लेकिन जो भी दूध आएगा बहुत मात्रा में आएगा, तो केवल पार्थ के लिए चाहिए तो मतलब इतना सारा दूध क्यों निकालना है? क्योंकि और भी पीने वाले हैं. कौन है? द ब्यूटिफुल नेक्टर ऑफ गीता इज मिल्क. ये दूध भी है और अमृत भी है. दूध और शहद जब मिल जाते हैं बहुत मीठा हो जाता है. तो देखिए दूध भी है और शहद भी है, और उनका जब सम्मिश्रण हो जाएगा बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है. द फॉर्चुनेट डिवोटीज of the fine theistic intelligence or intellect
और द ड्रिंकर्स। तो पार्थ के अलावा कौन? सुधीर भोक्ता, धीरा, भक्त, भक्तगण इसका, इस दुग्ध को पान करने वाले हैं। वी आर ऑल डूइंग दैट, वी आर ऑल टेकिंग ए शेयर ऑफ दैट मिल्क। भगवान ने 500 साल पहले दूध को निकाल के रख दिया था, आज भी हम इस दूध का आस्वादन कर पा रहे हैं गुरु की कृपा से। एंड एंजॉयर्स ऑफ दैट मिल्क, दुग्धम गीतामृतम महत सुधीर भोक्ता। तो पार्थ के लिए तो है ही, लेकिन भक्त के लिए भी वो भी भोक्ता बन जाएंगे इस दूध का। दुग्धम गीत अमृतम महत, इट इज, इट्स अ डिवाइन एंड बियॉन्ड द वर्ल्ड टेस्ट इट एज गॉड। अंत में शंकराचार्य जी बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही ग्रंथ काफी है दुनिया के लिए। What is that? There need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by Lord Shri Krishna. देवकी पुत्र गीतम, बहुत सारे गीत हैं, भगवत गीता है और बकबक गीता भी बहुत सारे हैं, तो वो सारे नहीं पढ़ना है। देवकी पुत्र गीतम, ओनली वन वर्शिपेबल लॉर्ड, एको देवो, कौन? लॉर्ड श्री कृष्णा, देवकी पुत्र एवं। तो एक भगवान काफी है, एक भगवान को पूजना काफी है, कौन हो? भगवान श्री कृष्णा। एक शास्त्र काफी है, कौन सा शास्त्र? गीता। ओनली वन मंत्र, एको मंत्र तस्य, कौन सा मंत्र? नामानि यानी, जो भगवत नाम का मंत्र है, इज होली नेम्स। और चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं है, उन्होंने आके हरे कृष्ण महामंत्र को हमें दिया, जो नाम मंत्र है। दिस इज द युग धर्म, कलयुग का धर्म है। एंड ओनली वन ड्यूटी, एक ही ड्यूटी है, एक ही कर्म हमें करना है। क्या? कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा, डिवोशनल सर्विस unto the supreme worshipable Lord श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्णा, वो किसका पूजा भी करना चाहिए ये भी बता दिया। आदि शंकराचार्य जी मायावादी फिलॉसफी का प्रचारक थे, वो स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन धर्म ग्रंथ का इतना दुरुपयोग हो चुका था, बुद्ध आके उसको रोक दिया धर्म ग्रंथों को पढ़ना, और आदि शंकराचार्य आके वेद ग्रंथ का फिर उद्घाटन किया। लेकिन उन्होंने, कौन भगवान है उस विषय में उन्होंने डूबा नहीं, क्योंकि फिर से कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अभी अभी तो रिकवर कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने बोला भगवान है, हम खुद भगवान हैं, हम खुद नारायण है। तो मायावादी फिलोसॉफी उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उनके जीवन के अंत अंत में उन्होंने ये श्लोका उन्होंने प्रस्तुत किया। So then he also gave the very famous shlokas for glorification of Gita later on. So where he said that simply by doing jugglery of words for grammar, it's not going to save you. Or doing all the gymnastics to have a good material life, it is not going to save you. So what is going to save you is Bhagavad Bhakti. So this Shankaracharya said, and then he also said that Narayana Paro Avyakta. And yes, Krishna is the Supreme Lord. He said this. So he ends with the glorification of Gita in this way. Karma api ekam tasya devasya seva. एक ही हमारा कर्म है. What is that karma? That karma is devasya seva. So this was about Shankaracharya talking about the glorification of Bhagavad Gita. So what we have learned so far, that Lord is Purushottama. कल मैंने बताया भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है, तो पुरुष उत्तमा is the best of the living entities, लेकिन he is also the basis of the living entities. वो सारे जीव जंतु का आधार भी है और सर्वश्रेष्ठ जीव भी है. So God is the answer for all questions of life and beyond it. भगवान ही सारे हमारे प्रश्नों का उत्तर है. The answer for every question we have finally ends with Krishna. So what is the answer for every question we have got? Whether it be troublesome, whether it is inquisitive, जिज्ञासु, ज्ञानी वाला प्रश्न, या फिर हमारे समस्या का हल का प्रश्न क्या है?
उत्तर क्या है? एक ही उत्तर है, वन वर्ड आंसर, कृष्णा। तो हमें समझ जाना चाहिए कि कृष्णा इज द आंसर फॉर एवरी ट्रबल ऑफ आवर लाइफ, and for every inquisitiveness of our life, for all the knowledge that I want to acquire in my life, and the goal of my life that we should understand. And he is beyond it, क्योंकि इस जीवन का गोल तो है ही, लेकिन इस जीवन के बाद भी वो हमारे साथ रहेंगे। हमें उनके साथ गोलोक में रहना है और उनका सेवा हमें करना है। सो भगवत गीता मस्ट बी स्टडीड नॉट जस्ट टू फिल द हेड, केवल सर में नॉलेज फिल करने के लिए भगवत गीता का अध्ययन हमें नहीं करना चाहिए। वैसे वो भी करेंगे तो भी ठीक है, बिकॉज कृष्णा खुद बोलते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता। ठीक है, तुम सर भरने के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर नॉलेज ऑफ रीडिंग भगवत गीता, वो भी काफी है। बिकॉज त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, कहाँ जाएंगे? माँ में थी, और कहीं नहीं जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। कृष्णा सेइंग दे विल कम टू मी, इज द ग्रेटेस्ट अश्योरेंस। कितने इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाएंगे, कितने लोग हमें अश्योरेंस देंगे, कितना धोखा हम खा चुके हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। वो बोल रहा है कि आप मेरे पास आएंगे, मतलब आप उनके पास आएंगे। और उनके एडवोकेट शीला प्रभुपाद जी उनके साथ खड़े होकर भी बोलते हैं कि जस्ट फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दैट आई हैव गिवन यू, जस्ट चैंट हरे कृष्णा मंत्रा, जस्ट बी इन द प्रोसेस, फॉलिंग डाउन गेटिंग अप, ऑल दिस इज देयर। जब बच्चा चलता है, ऐसा नहीं कि वो गिरेगा नहीं, वो गिरेगा, जरूर गिरेगा वो, बिकॉज वी आर नॉट प्योर डिवोटीज, लेकिन हम उस पथ पे हैं, वी आर ऑन दैट पाथ। So simply because we are on that path, we will be able to reach our destination by just sticking onto the path. So it's called the principle in even in the material world, last man standing. जो जो कौन जीतता है जिंदगी के रेस को? जो चलता रहता है वही जीतता है। जो थक के हार के कहीं पे रुक जाता है वो जीत नहीं पाएगा। तो जिंदगी का रेस अगर हमें जीतना है, भगवत धाम हमें प्रवेश करना है, तो जो हमारे गुरु ने हमें पथ जो दिखाया है, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसको फॉलो करके हमें सीधे आगे बढ़ते रहना है। गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। फिर हमें सीखना है कि क्यों गिरे हम, फिर आगे हमें यही गलती नहीं करना है। कोई और गलती हो जाएगा, फिर गिर जाएंगे, फिर उठना है, चलना है। बच्चा अगर एक बार गिरने के बाद बैठ जाएगा, रोएगा कि अब मैं आगे नहीं चलूंगा क्योंकि मुझे गिरने की संभावना है, तो मैं चलूंगा ही नहीं, तो कभी चल ही नहीं पाएगा, अपाहिज बन के रहेगा। दो पैर होते हुए भी अपाहिज बन जाएगा। तो वी शुड नॉट बिकम लाइक दैट। हैविंग गॉट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, वी मस्ट नॉट do the foolish mistake of not doing the best among the bad bargain that we have got. So we are in a bad bargain. भौतिक जगत में फंस चुके, कलयुग में अभी भी है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु इज टेलिंग, मैं कितना पापी हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं, भगवान से दूर रह के जिंदा हूं। ये सब हमारा सिचुएशन है, लेकिन हम ऐसे सोच भी नहीं सकते। बट हमें एक आधार मिल चुका है, शिला प्रभुपाद जी का चरण आश्रय हमें मिल चुका है। बहुत सारे आप में से शिला प्रभुपाद आश्रय कोर्सेस ज्वाइन करके आगे बढ़ रहे हैं। सो यू आर फॉर्मलाइजिंग योर रिलेशनशिप विद Srila Prabhupada, you are cementing your relationship with Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada has told that I will take charge. Krishna also has told, I will take charge of the devotee who surrenders unto me. और क्या चाहिए हमें? अगर कोई इतना आश्वासन दे रहे हैं, हमें और कुछ चीज चाहिए ही नहीं। So Bhagavad Gita must not be studied just to fill the head, but we must try to transform our heart. It must bring about a change in our heart, a transformation in our heart. हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आना चाहिए, भक्ति हमारे अंदर जागना चाहिए। सो व्हेन द इनफाइनाइट इज डिस्कवर्ड, जैसे भगवत गीता हम पढ़ेंगे तो भगवान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो भगवान को हम पा सकते हैं, भगवान के बारे में हम जान सकते हैं। सो व्हेन द इनफाइनाइट भगवान इज डिस्कवर्ड, द इनफाइनाइट सिमल इज अनकवर्ड। तो जब भगवान को हम जानेंगे तो भगवान के अंश जो हम हैं
हम अपने आप को भी जान पाएंगे। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, गॉड रियलाइज्ड पर्सन is also self-realized, because when you know the whole plan, then you also know the part plans also. हर एक पार्ट्स को आप जान सकते हो जब आप पूरी तरह सब कुछ जान चुके हो। तो जब भगवान के बारे में आप जानते हो, मतलब आप अपने बारे भी जानते हो। सो व्हाट वी लुक फॉर इन द वर्ल्ड, हम क्या ढूंढ रहे हैं दुनिया में? वी आर ऑल सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, बट व्हाट इज आवर एक्चुअल डिफॉल्ट नेचर? जो हम शुद्ध आत्मा थे, हमारा डिफॉल्ट नेचर क्या था? आनंदमय अभ्यासात। हमारा अभ्यास ही आनंदमय था। इस शोकमय, भयमय, भय भरे जीव, मतलब भौतिक जगत में आके हम क्या हो गए? आनंद पाना भूल गए। फिर भी क्योंकि हमारे अंदर वो टेंडेंसी है, हम आनंद को ढूंढ रहे हैं। तो आनंद कैसे ढूंढ रहे हैं हम? पूरा जीवन यही चलता है, पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करूंगा तो कुछ बनूंगा, तो मैं आनंद में रहूंगा। तो उसके लिए घनघोर तपस्या पढ़ाई का होता है। नौवीं कक्षा में आएगा तो बोलेगा 10वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, तब मैं आनंद में रहूंगा। वो आएगा भी, अच्छे मार्क्स आएगा, 100% भी आएगा, लेकिन उसको 11th स्टैंडर्ड में तो जाना है। फिर उसको बुक्स पकड़ना है, पढ़ना है। फिर वो सोचता है 12th के बाद मैं आनंद ही आनंद में रहूंगा, क्योंकि 12th के बाद मैं प्रोफेशनल कॉलेज ज्वाइन करूंगा। तो 12th पास हो गया, बढ़िया मार्क्स मिल गए, आईआईटी ज्वाइन कर लिया। आईआईटी ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे ऐसे आईआईटी में ज्वाइन करने वाले, दे कमिट सुसाइड इन द वेरी फर्स्ट ईयर। वो पता है, इट्स कॉल्ड एज ब्रिलियंस शॉक सिंड्रोम। बिकॉज जब आईआईटी का रैंक उसको आया, तो उसका सारे मोहल्ले वाले, घर वाले ग्लोरीफाई कर दिया उसको, एक मतलब पेडेस्टल पे बिठा दिया। तो वो अपने गांव का, अपने फैमिली का, क्या बोलते हैं, तारा बन गया, स्टार बन गया। फिर वो कहाँ आ गया? आईआईटी कॉलेज में आ गया। आईआईटी कॉलेज में वो देख रहा है, अरे उस जैसे उस कक्षा में और 100 लोग हैं। मैं सोच रहा था मैं एक हीरो हूँ, मेरे जैसे 100 हीरो इधर है, और ये कॉलेज उस वैसे हीरो से भरे पड़े हुए हैं। ये पूरा कॉलेज आईआईटी ग्रेजुएट्स का है, जो मेरी तरह स्ट्रगल करके अच्छे नंबर लेके आए हैं। एक्चुअली मैं आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है उसको। तो इट्स कॉल्ड ब्रिलियंस शॉक। वो आके यही सोचता है कि मैंने सोचा मैं ही 30 मार्क आनता, यहाँ पे तो बहुत सारे और लोग हैं वो बहुत तीर मार चुके हैं। तो ही गेट्स इनटू डिप्रेशन। तो ऐसे लोग ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। And in IT, every year there's one or two cases where suicide happens because of this syndrome. क्योंकि वो suddenly he is feeling that अरे I thought I'm a great person, but यहाँ के मैं देख रहा हूँ कि मैं I'm a commoner like all of them. ये तो मामूली चीज है इन लोगों के लिए। तो मेरा तो 99% मार्क्स था, यहाँ पे 100% मार्क्स लिए हुए लोग हैं, मुझसे आगे हैं लोग। दिस वाटर, एंड इफ यू सर्वाइव्स आल्सो इन आईआईटी ओवर, सोचेगा अरे कितना ग्राइंड है यहाँ पे, एक बार जॉब मिल जाएगा मैं खुश रहूंगा। जॉब मिलेगा, हमें पता है कोई खुश है अपने जॉब से? इज एनीबडी हैप्पी विथ हिज जॉब? नोबडी, even including the housewife. She might not be really happy, fully happy with her with her so-called job, because hers is a 24/7 job. जो बड़े बड़े कारखाने में काम करते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, कभी नहीं सोचते, क्योंकि उसका मैनेजर खड़ूस निकलेगा। वो सोचेगा एक दिन ना मैं प्रमोशन लेके इससे ऊपर जाऊंगा, तब मैं खुश रहूंगा। फिर वो भी दिन आएगा, तो इसको प्रमोशन मिल गया उसकी जगह और वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया। फिर वही दल दल। फिर वो सोचेगा दूसरे कंपनी ज्वाइन करूंगा, तो वहां पे अच्छा पोस्ट में आऊंगा, तब मैं खुश रहूंगा। तब भी नहीं हो पाएगा। फिर वो सोचेगा शादी कर लेंगे, शायद खुश रहेंगे। और शादी करने के बाद ये सोचेगा पहले ही कुछ था मैं बहुत। फिर उसके बाद बच्चे आएंगे, अपना डिमांड्स रखेंगे। सो आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, बट दिस एक्चुअली द ट्रूथ ऑफ लाइफ, बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस इन द रॉन्ग प्लेसेस, इन द रॉन्ग पीपल। क्या इसका मतलब है हमें खड़ूस रहना है लोगों से? We are not supposed to be happy with each other. Yes, you must be. But if you are going to think that this is permanent happiness, then we are again caught into the trap. So we should keep Krishna in the center.
घर में कौन केंद्र बिंदु होना चाहिए? कृष्णा. एवरीबडी शुड बी ट्राइंग टू मेक कृष्णा हैप्पी. सो व्हेन कृष्णा इज हैप्पी वी विल बी हैप्पी. तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा. अगर कृष्ण भगवान को हम संतुष्ट करेंगे, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, हमारे परिवार वाले भी संतुष्ट हो जाएंगे. दिस इज द सीक्रेट ऑफ बीइंग हैप्पी. Make Krishna happy. How do you make Krishna happy? By following the instructions of his pure devotee, your spiritual master. As simple as that. By engaging yourself in a devotional service. So what we look for in the world, happiness, is to be found beyond this world. इस दुनिया में मिलेगा ही नहीं वो सुख, शाश्वत तो रहेगा ही नहीं. दुखालयम अशाश्वतम. कृष्णा ने सर्टिफिकेट बना के इस दुनिया को बनाया है. जब वो बना रहा था दुनिया को, भौतिक दुनिया को, तो क्यों बना रहा था? दुखालयम. ये दुख दुख का आलय होगा. अशाश्वत. सुख भी मिलेगा, इस अशाश्वत रहेगा. दुख भी आएगा, उस तरह का दुख अशाश्वत रहेगा. नया दुख आएगा बाद में, लेकिन वो दुख चला जाएगा. तो दुख आएगा जाएगा, सुख आएगा जाएगा. तो उसके लिए फॉर्मूला कृष्णा ने दे दिया. व्हाट इज दैट? इन द सेकंड चैप्टर 14 श्लोक. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाह. दिस इज जस्ट सेंसरी परसेप्शन. जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, शीत उष्ण सुख दुख ऐसे भी आते जाएगा. हैप्पीनेस एंड डिस्टर्ब विल कम एंड गो. तो मुझे क्या करना चाहिए? तो कृष्णा गिव्स द फॉर्मूला. आगम अपायनो अनित्य. आएगा जाएगा, सुख आएगा जाएगा, दुख भी आएगा जाएगा. दैट्स व्हाई दे हैव फाउंड आउट अ फॉर्मूला. नो, दिस टू शैल पास. कहां से आ रहा है ये सारे ज्ञान? भगवत गीता से आ रहा है. डोंट बी बिफोल्ड. इट्स नॉट इन्वेंटेड बाय सम फॉरेन ऑथर. ये स्वयं कृष्णा का बोधन है. दिस टू शैल पास. दिस इज द श्लोका. तो आगम अपायनो अनित्यास. तो विचलित नहीं होना है. जब सुख आएगा ज्यादा उड़ना नहीं है, क्योंकि वो चला जाएगा. आईआईटी का आपका जो ब्रिलियंस है कुछ ही समय रहेगा. इसके बाद आईआईटी ज्वाइन करेंगे, पता चलेगा आपका औकात. तो दुख भी आएगा तो विचलित नहीं होना है. दुख आएगा तो जाएगा. जैसे समर आया चला गया, विंटर आएगा चला जाएगा. लेकिन हमें एज इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स वी मस्ट ट्राई टू मिनिमाइज दीज थिंग्स. बारिश आएगा तो वो तो रोक नहीं सकते आप, लेकिन छाता आप पकड़ सकते हैं. दिस इज इंटेलिजेंस. बारिश आएगा, दुखों का बारिश आएगा, सुख का बारिश आएगा, अब रोक नहीं सकते, कर्म के अनुसार आएगा. लेकिन आप क्या कर सकते हो? छाता लेके रेडी हो सकते हो. छाता तो ले सकते हो. यू कैन होल्ड द अम्ब्रेला एंड यू विल नॉट गेट वेट. जैसे कि कमल का दल पानी में रहता है और कभी वेट नहीं होता. हम संसार के जीवन में रह सकते हैं और भगवान को केंद्र बिंदु बना के बिना संसार में उलझे हुए, विदाउट गेटिंग बाउंड इन इट, वी कैन यूज दिस ह्यूमन लाइफ एज अ बोट and cross over this material world and reach the other shore, which is the spiritual world, with the help of two things. One is the boat called human body. Another one is making your spiritual master the captain of your ship and going by the Lord's guidance by reading Bhagavad Gita. Panna sandarshito dhatra dustaran nishtiteshtam kalim sattvaharam pumsam karanadara nivarnam. केवल प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ने से वी कैन गो बैक टू गॉडेड. केवल प्रभुपाद जी के मंदिर में सेवा करने से वी कैन गो बैक टू गॉडेड. केवल हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से वी कैन गो बैक टू गॉडेड, बिकॉज ऑल दीज आर इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु एंड गौरांगा एंड कृष्णा हिमसेल्फ. So thank you very much for joining me today. We will meet again next week, next Monday for Bhagavad Gita class, and we will start with the overview of chapter 11.